हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। अब अगर हम सेंटेंस के बारे में पूछेंगे व्हाट इज अ सेंटेंस, फौरन से आपके माइंड में क्या क्लिक करता है? उसकी मीनिंग। सेंटेंस का मतलब है जुमला, लेकिन सेंटेंस इटसेल्फ अगर उसको डिफाइन किया जाए तो वो क्या है? वैसी ही डेफिनेशन है जैसे अभी हमने प्रीवियसली पढ़ी वर्ड की, लेकिन यहाँ पे वर्ड के टाइम पे था कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, लेकिन यहाँ पे है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी डिफरेंट वर्ड्स को आप कंबाइन करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन जो है वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का होना ही जरूरी नहीं है, उसके लिए उस सेंटेंस की सेंसिबल मीनिंग निकलना भी जरूरी है। As you can see the example here, like reading eye. Do you think so it's a sentence? No, it is not a sentence, but yes, it is a combination of words. But it is not giving you the meaning, that is why it is not considered to be a sentence. इन्हीं तमाम वर्ड्स को अगर हम प्रॉपर वे में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए और सेंटेंस के एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इन वर्ड्स को आगे पीछे करते हैं और तरतीब से रखते हैं जो एक मीनिंग भी दे, तो क्या होता है? आई लाइक रीडिंग, क्या ये सेंटेंस है? यस, इट इज अ सेंटेंस। व्हाई? बिकॉज इट इज गिविंग यू द मीनिंग एज वेल। तो ये बात प्रूव होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और सेंसिबल मीनिंग एक साथ हो तो वो कहलाता है सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन के बाद हम जाएंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस की तरफ। यूजुअली जो आप देखते हैं एग्जाम्पल्स टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर वो 4 दी जाती हैं, जिसमें अफर्मेटिव आ जाता है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी। लेकिन यहाँ हम कोशिश करेंगे कि जितनी एग्जाम्पल्स और टाइप्स हम यूज करते हैं वो हम सभी आपको बताएं। पहली जो एग्जाम्पल है जो टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर है वो है अफर्मेटिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको। दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फोर्थ नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज imperative sentence, and sixth number is exclamatory sentence. We will explain all of them individually with the examples. Now we are describing the types of sentence in detail. Very first type of sentence is affirmative or declarative sentence. A declarative or affirmative sentence is a kind of a sentence in which it provides a statement. It shows us the positivity in itself and it is ended by a full stop. You can say that whenever we declare anything in a positive way, whenever we give the statement of something in a positive way, so that kind of sentence is called a declarative or affirmative sentence. It can also be called assertive sentence, or by the definition if you can see, as it is showing the positivity, so it can be called a positive sentence also. Here are some examples of this kind of sentence, affirmative or declarative. For example, I like fruits. I am just informing you, or I just have told you about my likeness or dislikeness in a positive manner, as I have given you the statement about my choice. So I like fruits. It's an example of this kind of sentence. Another example is he goes to school. I just have provided you the information about him in a positive manner. So I am giving you and telling you something, informing you something, giving you the statement of something in a positive manner. And by the end of all these kind of sentences, you can see there is a full stop. So this is very first type of sentence. The second type of sentence is negative sentence. Negative sentence is kind of a sentence which shows negativity in it. And it has not, the word not in it always. If we say about something that, like for example, she does not like apple, means it is giving you the negativity in it by the usage of not, that she does not like apple. Second example of the same kind of sentences, they will not go to school. Now it is giving you the sense of a negativity in it by the word not.
So this is second type of sentence, negative sentence. Now the third type of sentence is interrogative sentence. By the name of this kind of sentence you can automatically get to know the meaning and the nature of this type of sentence. इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ही इटसेल्फ यही है कि उसके अंदर इंटेरोगेशन की जाती है. इंटेरोगेशन का मतलब है टू आस्क अबाउट समथिंग. इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट समथिंग. तो इसके अंदर इंटेरोगेशन की जाती है और पूछा जाता है किसी भी चीज के बारे में या कोई क्वेश्चन किया जाता है. तो क्वेश्चन वाले सारे सेंटेंसेस को हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हमेशा आखिर के अंदर साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगता है जो कि है क्वेश्चन मार्क. It is marked by the sign of interrogation, that is a question mark like this. You are supposed to use the sign of interrogation at the end. Otherwise, इसके बगैर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. पहली चीज. दूसरी चीज ये आ जाती है कि इंटेरोगेशन के भी दो तरीके होते हैं. एक तो इंटेरोगेशन होती है उस तरह की जिसके अंदर आप हेल्पिंग वर्ब को अपने सेंटेंस के स्टार्ट में इस्तेमाल कर रहे होते हैं. और दूसरी टाइप होती है इंटेरोगेशन की WH वर्ड्स के जरिए. WH वर्ड्स क्या है बेसिकली? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ. ये एक तरह की WH की वो फैमिली है जो कि W एंड H फैमिली कहलाती है और उसके जरिए से हर वर्ड जो है वो W और H से ही स्टार्ट हो रहा होता है और एंड में उसको भी हम क्वेश्चन मार्क से ही रिप्रेजेंट करते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्यों हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फर्स्ट टाइप जिसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें हम हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आता है. उसकी वजह ये होती है कि ये इस तरह के जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमें किसी चीज के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है और हम उस चीज को कंफर्म कर रहे होते हैं उसको पूछकर. तो ये एक तरह के कंफर्मेशन वाले सेंटेंस हैं. इसमें हम कंफर्मेशन कर रहे होते हैं. ठीक है. और इसके अंदर आप एग्जांपल देख सकते हैं कि डू यू लाइक फ्रूट्स. दैट मीन्स आई हैड एन आइडिया ऑफ समथिंग लाइक अबाउट योर लाइकनेस एंड आई एम जस्ट कंफर्मिंग इट फ्रॉम यू. कि मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूं कि क्या आपको फ्रूट्स पसंद है, क्या आपको फल पसंद है. उसके बाद है विल यू लर्न इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश सीखना चाहोगे, क्या आप इंग्लिश सीखोगे. तो इसका मतलब कि मुझे यहाँ पर इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत पता था और मैंने सिर्फ आपकी लाइकनेस को यहाँ पे कंफर्म किया और आपकी उस एक्टिविटी को कंफर्म किया जो आप फ्यूचर में करना चाहोगे. तो यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत चीज की नॉलेज है और हम उसको कंफर्म कर रहे हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स के थ्रू. तो पूछा ही है इसके बारे में भी, इसीलिए क्वेश्चन मार्क भी है. अब जब W एंड H फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे हम उस तरह की कंफर्मेशन नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें वो चीज सिरे से पता ही नहीं होती है. अगर हम ये कहें कि व्हाट इज योर नेम, दैट मीन्स आई डू नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ योर नेम. मुझे सिरे से नहीं पता कि आपका नाम क्या है. इस वजह से मैंने आपसे क्या पूछा. हम आमतौर से किसी नए बंदे से मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट इज योर नेम. इसी तरह की एक एग्जांपल आप इसी तरह ले सकते हैं कि कुछ अगर किसी पर्सन से आप पहले मिले हैं और आपको लगता है कि मैंने इसको कहीं देखा है और इसका नाम मुझे पता है, शायद इसका नाम सना है या शायद इसका नाम अली है या इसका नाम जोसेफ है या इसका नाम कुछ और है, तो हम क्या बोलते हैं, आर यू सोना, आर यू जोसेफ. तो उस वक्त हमें वो नाम पता होता है और हम यहाँ कंफर्म कर रहे होते हैं. तो वो कंफर्मेशन वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है. लेकिन अगर हमें किसी का नाम सिरे से नहीं पता तो हम कहते हैं व्हाट इज योर नेम, हु आर यू. अगर हमें लगता है कि हम किसी बंदे से पहली बार मिल रहे हैं, किसी पर्सन से हम पूछ रहे हैं फर्स्ट टाइम पे, तो हम कहेंगे हु आर यू, आप कौन हो. लेकिन हमें लगता है कि अगर हम उस बंदे से पहले मिल चुके हैं, कोई ऐसा बंदा जिससे आप फेमिलियर हो पहले से, तो आप उसको क्या बोल रहे होते हैं, आर यू. तो फिर यहाँ आप कंफर्म कर रहे होते हो. तो दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव, जिसके अंदर एक जो है वो हम हेल्पिंग वर्ब के जरिए इस्तेमाल करते हैं. एट दी एंड हम इस्तेमाल साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क ही करते हैं. और WH वाले सवालों के अंदर W एंड H फैमिली से हम वर्ड्स यूज करते हुए उस बारे में पूछ रहे होते हैं और इसके आखिर में भी हम साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाते हैं. तो ये हमारी थर्ड टाइप थी टाइप्स ऑफ सेंटेंस की. टाइप्स ऑफ सेंटेंस में फोर्थ टाइप
जो कि एग्जैक्टली टाइप ऑफ सेंटेंस में नहीं आती, लेकिन हम सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताना चाह रहे हैं कि एक इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस भी टाइप होती है, जो कि इटसेल्फ एक टाइप नहीं है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन है दो तरह की टाइप ऑफ सेंटेंसेस का, जो कि हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक हमने पढ़ा था नेगेटिव सेंटेंस और एक हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब ये दोनों सेंटेंसेस, जो दोनों टाइप्स जब ये कंबाइन हो जाती हैं, तो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस जो है वो एक और टाइप ऑफ सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं हम। इसके अंदर होता यह है कि आपने देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हमेशा नॉट लगाते हैं, यानी हम नफी का इनकार कर रहे होते हैं और हम नफी का मुजाहरा कर रहे होते हैं उसके अंदर। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ऑटोमेटिकली, इसके नाम से ही आपको अंदाजा हो चुका है कि इंटेरोगेशन हो रही है इसके अंदर, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वाले टाइप ऑफ सेंटेंस के अंदर ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, मीन्स यू आर यूजिंग a question mark in the sentence, means you are interrogating about something and you are saying with that sentence with not भी लगा रहे हैं और क्वेश्चन मार्क भी लगा रहे हैं। जिस तरह से ये एग्जांपल बताई जा रही है कि आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, इफ यू जस्ट हाइड दिस प्लेस, अगर आप सिर्फ इसको हटा दें और इसको थोड़ा सा हाइड कर लें तो यू कैन सी द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इसी तरह से इसके अंदर नॉट लगाया है और क्या पूछ रहे हैं कि आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, मीन्स आपको थोड़ी बहुत इस चीज की नॉलेज है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हो, और फिर मैं इसको आपसे मजीद कंफर्म भी कर रही हूँ कि क्या आप स्कूल नहीं जा रहे हो या आप स्कूल नहीं जाने वाले हो। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल इसकी है कि हैज अली नॉट अराइव्ड येट, अब ये क्वेश्चन भी आ रहा है, यानी मैं पूछ भी रही हूँ और इसके अंदर मैं नॉट का भी इजाफा कर रही हूँ। तो क्या अली अभी तक नहीं पहुंचा है, क्या अली अभी तक नहीं आया है, अभी तक उसका अराइवल नहीं हुआ है, अभी तक अराइव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन भी हो रही है, यानी इंटेरोगेशन भी हो रही है, और नॉट का भी इस्तेमाल किया है। तो दिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ सेंटेंसेस, negative and interrogative, and this is called interrogative sentence. This is fifth kind of type of sentence, and its name is imperative sentence. Imperative sentence shows an order in it, and there are two types of orders. First type of order is positive order and the second type is negative order. Positive order means something what you order somebody to do something, means you are using your action verb in the beginning of the sentence. For example, complete your work on time, finish your meal now, come inside, lock the door, go outside, something like this, what you are ordering somebody to do in a positive way. It is a positive order because it is showing positivity in it. And the second type of order is a negative order. Remember, negative order always needs to have don't in it in the beginning of the sentence. Always we use don't in the beginning of the sentence in negative type of order. So don't argue with me, this is one of the examples. Don't touch the switch, don't go outside in the evening, don't use your cell phone a lot, don't call me, something like that. So these are the orders in which we are showing the negativity. That is why we are using don't in it. So this is fifth type of sentence, which is imperative sentence. Now the sixth and the last type of sentence is exclamatory sentence. Exclamatory sentence are kind of sentences in which we show sudden emotions and feelings. किसी भी अच्छी बात को या बुरी बात को सुन के या आप देखकर एकदम से जो इमोशंस आपके और फीलिंग्स जनरेट होते हैं, उस सूरत में जो भी वर्ड यूज किया जाए वो एक्सक्लेमेटरी वर्ड कहलाता है. These are some examples of exclamatory words what you can see, and these are specifically used in exclamatory sentences like hurrah, yahoo, alas, ooh, oh. इस टाइप के सेंटेंसेस आप जब एकदम से कोई अच्छी खबर या बुरी बात सुनते हैं तो एकदम से आपका सडन इमोशंस जो आते हैं, तो ये वर्ड्स आप एकदम से बोल रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अलास ही पास्ड अवे. Automatically if you read this word, so you can get to know that it is giving you the meaning of kind of condolence or something, कि आपने कोई बुरी बात सुनी. उसके बाद it is a word which is specifically used for disgust.
So, ooh, there is a cockroach. It is showing you the disgust. That is why just after that particular word you are using the sign of exclamation. This is called exclamatory sign. So these are the words which are used to show the exclamation. Now there are the sentences which are being used for showing the exclamation in them. For example, it's a public holiday tomorrow. एकदम से आपने वो चीज बोली जो खुशी की बात थी, लेकिन अब आपने यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज नहीं किया, आपने पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेशन के साथ बोला है. सो जस्ट आफ्टर द सेंटेंस यू विल यूज एक्सक्लेमेशन sign, exclamatory sign. One more example, we have won the match. ये एकदम से सेंटेंस बोला, फौरन से मैच जीत गए, तो उसके बाद वो सेंटेंस के एंड में आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया, यानी आपने खुशी का इजहार किया, लेकिन यहाँ पे आपने एक जुमले की सूरत में उसका इजहार किया, तो ये सडन इमोशन था आपका. So these are the examples of exclamatory words and these are some examples of exclamatory sentences. So this is all about types of sentence. We have completed all 6 types of sentence today. Thank you so much. If you like my video, so please share it and like it. And you can subscribe my channel to remain updated for more videos in future. Thank you. So students, अब हम आते हैं हमारे conversation topic की तरफ. आज का हमारा पहला conversation topic ये है that how to introduce yourself. This is the first thing and very important thing what you have to practice in order to tell somebody about yourself in a proper way. तो जब आप किसी को अपने आप को introduce करने जा रहे होते हैं, तो some are the things which are must to be told. कि आप लोगों ने ये चीज़ें ज़रूरी ही बतानी होती हैं, और इस चीज़ का भी याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं which are not supposed to be told in your introduction. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं बतानी चाहिए इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है. तो क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें बतानी चाहिए और एक प्रॉपर वे में हमारा इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, ये आज की हम वीडियो के अंदर लर्न करेंगे. और फिर इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो के एंड में इंशाल्लाह ताला असाइनमेंट दूंगी. असाइनमेंट भी मैं इसी वीडियो के अंदर दूंगी ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको पता चले कि असाइनमेंट क्या था. अब जिन्होंने वीडियो नहीं देखी होगी या फॉरवर्ड करके कुछ करके देखी होगी, तो ऑब्वियसली उन लोगों का असाइनमेंट भी मिस हो जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबसे पहले आप लोगों को अपना नेम बताना है. योर नेम शुड बी कंप्लीट. कंप्लीट नेम बताना है. लाइक माय नेम इज सबा उजैर, लाइक दिस, ठीक है. अपनी एज बतानी है, फिर एजुकेशन बतानी है, आपका प्रोफेशन यानी आपकी जॉब क्या है. अगर आप कोई जॉब नहीं करते तो आपको डायरेक्ट ये बोलना है कि आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है. लेकिन आपकी एक कहना चाहिए कि एक डेजिग्नेशन हर एक बंदे की होती है. ऐसी बात नहीं है कि मेरी तो कोई जॉब ही नहीं है, ठीक है. फिर इसके बाद आपने सिटी और कंट्री बताना है. उसके बाद आपकी अपनी एम्बिशन क्या है, यानी आप क्या करना चाहते हैं, एम क्या है. या आप अगर ये कोर्स कर रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, किसी जॉब इंटरव्यू में अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आपकी एम क्या है कि आई वांट टू बिकम अ डिजाइनर, आई वांट टू बिकम अ टीचर, आई वांट टू बिकम दिस एंड दैट. तो वो आपकी एम्बिशन के अंदर आ जाता है. देन योर लाइकनेसेस एंड डिसलाइकनेसेस, यानी आप कौन सा कलर पसंद है, या आपकी ओवरऑल अगर आप ले लें तो उसको आप अपनी हॉबी बता दें कि आई वांट टू प्ले फुटबॉल या आई वांट टू प्ले क्रिकेट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद माय इंट्रोडक्शन. माय नेम इज सबा उजैर. आई एम 34 years old. I am double masters in 2 different subjects, English and Islamic studies. By profession, I am a teacher. My city is Karachi and country is Pakistan. Yeah, I am from Karachi, Pakistan. My ambition is to help people in learning English. My hobby is reading books. So this is my introduction. यही चीजें आपको अपने लिए फॉलो करनी है और आपने अपने प्रॉपर सा इंट्रोडक्शन बनाना है. देन यू हैव टू स्पीक दैट एंड आपको जो है वो उसकी प्रैक्टिस करनी है. अच्छा, यही चीज अगर हम अभी तो मैंने आपको एक प्रोफेशनली अपना इंट्रोडक्शन दिया है, यही इंट्रोडक्शन अगर आप किसी स्टूडेंट का लें जो कि मैट्रिक क्लास का स्टूडेंट है या मैट्रिक क्लास की स्टूडेंट है, तो वो कैसे देगी ये. माय नेम इज सारा. आई एम 15 years old. I am a student of 9th class. Yeah, my education is class 9. I am a student. I am from Karachi, Pakistan. My ambition is to become a doctor. I like reading books. I like
playing video games, something like this. ठीक है, तो ये हो गया एक ऐसी बच्ची का, एक ऐसी लड़की का इंट्रोडक्शन जो कि एक स्टूडेंट है. अब इसी तरह से एक ऐसे पर्सन जिनका डिफरेंट जो है वो प्रोफेशन है और वो मेल है, हाउ विल ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ? माय नेम इज हामिद. I am 40 years old. My education is MBA. I am a businessman. I belong from Karachi, Pakistan. My ambition is to grow my business internationally and have my clients throughout the world. My hobby, I like playing cricket in my spare time, in my free time. So these are three kind of different introductions which I have given you guys, ताकि आप लोगों को ये पता चले, क्योंकि मेरी क्लास के अंदर भी डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स हैं. कुछ बच्चे हैं 9 मैट्रिक के, कुछ जो है वो प्रोफेशनल्स हैं. तो मैंने डिफरेंट टाइप के आप लोगों को इंट्रोडक्शंस दे दिए हैं. नाउ दिस इज योर टास्क टू प्रिपेयर योर ओन इंट्रोडक्शन and then tell that introduction in your voice message on my WhatsApp number. And I am requesting you guys once again, one more time, that you have to subscribe and press the bell icon button so that you get the notification automatically. क्योंकि मैं अभी असाइनमेंट भी आप देखें, मैंने आपको फौरन इसी के अंदर दे दिया है. मैं आपको ब्रॉडकास्ट में सेंड नहीं करूँगी कोई भी चीज़ें ज़्यादातर. तो आप लोगों ने इसी वजह से नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, और वो है देयर आर. आप लोगों को ग्रामर की स्टार्ट के अंदर ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज समथिंग विच हैज़ नो एग्जैक्ट मीनिंग इन उर्दू. जब हम उर्दू के अंदर बात कर रहे होते हैं तब इनकी एक्चुअल कोई मीनिंग नहीं निकलती है हमारे सेंटेंस के अंदर, बट इनको इस्तेमाल करना हमारे लिए मस्ट होता है इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ प्रॉपर सेंटेंस. सो देयर इज एंड देयर आर, दीज बोथ आर यूज्ड टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग. लाइक दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इट. ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है कि किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस यानी वजूद को शो करने के लिए हमें देयर इज और देयर आर इस्तेमाल करना होता है. लेकिन देयर इज कहाँ इस्तेमाल होगा और देयर आर कहाँ इस्तेमाल होगा? देयर इज विल बी यूज्ड फॉर सिंगल थिंग, राइट? एंड देयर आर विल बी यूज्ड फॉर प्लूरल थिंग्स. अब वो लोग भी हो सकते हैं, चीज़ें भी हो सकती हैं, शहर भी हो सकते हैं, ख्यालात भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है तो वो देयर आर. और इफ द थिंग इज इन अ सिंगुलर फॉर्म सो इट विल बी देयर इज, राइट? लेट्स कम टू द एग्जांपल्स नाउ. एग्जांपल्स क्या है? देयर इज अ फैन in the room. कमरे में एक पंखा है. अब आप ये देखेंगे, मैंने जब इसकी ट्रांसलेशन बताई है कि कमरे में एक पंखा है, तो मैंने देयर इज की एक्चुअल ट्रांसलेशन कुछ भी नहीं की है. यानी कि फैन बोला मैंने, कमरा बोला, कमरे के अंदर इन लगाया, यानी इनको लगाया मैंने कमरे के अंदर शो करने के लिए. लेकिन मैंने पूरे सेंटेंस के अंदर देयर इज की एक्चुअल कोई ट्रांसलेशन नहीं की. दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, दैट देयर इज नो एक्चुअल ट्रांसलेशन ऑफ दीज बोथ द थिंग्स, बट दे हैव टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ प्रॉपर सेंटेंस. अगर हम सिर्फ इतना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे कि आ फैन इन द रूम, तो वो एक मीनिंग नहीं दे रहा. कमरे के अंदर एक फैन है, तो इसको शो करने के लिए, सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा देयर इज, क्योंकि हम एक पंखे की बात कर रहे हैं. ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द सेम थिंग के देयर इज वन या आ, दोनों में से एक इस्तेमाल करते हैं हमेशा. अगर वन बोल रहे हैं तो आ नहीं बोलेंगे, आ बोलेंगे तो वन नहीं बोलेंगे, बिकॉज बोथ द थिंग्स हैव गॉट द सेम मीनिंग. दोनों का मतलब एक होता है.
ठीक है। सो देयर इज वन या देयर इज अ बॉय इन माय क्लास, मेरी क्लास में एक लड़का है, ठीक है। तो ये चीजें शो कर रही हैं सिंगुलर थिंग्स को, यानी एक एक चीज को। तो अगर एक लड़का है तो देयर इज। अब इसी तरह से आते हैं हमारी एग्जाम्पल देयर आर की। अब हम बात करेंगे प्लूरल थिंग की, ठीक है। सो देयर आर 20 बॉयज इन द पार्टी, पार्टी के अंदर 20 लड़के हैं। अब 20 लड़के यानी 20 बॉयज मैंने बोले हैं, लाइक आई टोल्ड यू मोर देन 1 बॉयज, ठीक है। अगर मैं 2 भी बोलती तब भी मैं देयर आर इस्तेमाल करती, बिकॉज देयर आर विल बी यूज्ड फॉर द प्लूरल थिंग्स, ठीक है। यानी एक से ज्यादा जो भी चीज होगी हम उसके लिए देयर आर इस्तेमाल करेंगे, और वो चीज प्रेजेंट में होनी चाहिए। ये चीज भी याद रखिएगा कि अगर वो चीज एग्जिस्ट करती है, उसका वजूद है प्रेजेंट के अंदर, तो हम बोलेंगे देयर आर 20 बॉयज। यानी भाई अभी मुझे बताओ पार्टी के अंदर कितने लोग हैं, कितने लोग जमा हो गए हॉल में। देयर आर 200 पीपल। उनमें से कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं। देयर इज अ गर्ल, एक लड़की है। देयर आर 20 बॉयज। यानी मैं पूछ रही हूँ कि अभी प्रेजेंट के अंदर उस पार्टी में, उस हॉल में कितने लोग मौजूद हैं। सो दिस इज द यूज ऑफ देयर इज एंड देयर आर। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ देयर आर। देयर आर some biscuits in my plate, मेरी प्लेट में कुछ बिस्किट्स है। अब कुछ का मतलब 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक से तो ज्यादा है ना, इस वजह से हमने देयर आर लगाया है। सो ओवरऑल अब आप लोगों को एक रिव्यू दे देती हूँ, रिवीजन दे देती हूँ अपने इस टॉपिक की, कि देयर इज एंड देयर आर विल बी यूज्ड टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंट, ठीक है। एग्जिस्टेंस भी होनी चाहिए और इन द प्रेजेंट, क्योंकि हम देयर इज और आर बोल रहे हैं। अब अगर वही एग्जिस्टेंस पास्ट में होगी तो हम क्या बोलेंगे, वो हम अभी इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया देयर इज। इस्तेमाल होगा सिंगल चीज के लिए, वो पर्सन भी हो सकता है, वो कोई चीज भी हो सकती है, वो कोई आइडिया भी हो सकता है। देयर इज एन आइडिया इन माई माइंड, मेरे ब्रेन में, मेरे माइंड में एक आइडिया है। देयर आर सम आइडियाज, देयर आर 2 आइडियाज इन माई माइंड, मेरे ब्रेन में, मेरे माइंड में 2 आइडियाज है, तो मैंने बोला देयर आर, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसकी एग्जांपल्स है, देयर इज अ फैन इन द रूम, देयर इज अ बॉय इन माय क्लास, देयर आर 20 बॉयज इन द पार्टी, देयर आर सम बिस्किट्स इन माय प्लेट। सो दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, कि जिसके अंदर हमने एग्जिस्टेंस की बात की है। नाउ लेट्स कम टू दिस थिंग कि अगर एग्जिस्टेंस की बात करेंगे, लेकिन अगर हम उसको पास्ट में बात करें, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर हम सेम बात को पास्ट के अंदर बोलने जा रहे हैं कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और वो एग्जिस्ट करती थी, अब मजीद एग्जिस्ट नहीं करती है, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो अब हम आते हैं पास्ट की एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि अगर वही एग्जिस्टेंस हम पास्ट में लेके चले जाते हैं, किसी चीज़ की, किसी पर्सन की या किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को हम बात करेंगे पास्ट के अंदर, तो हम बोलेंगे देयर वाज और देयर वर, ठीक है। तो अब उनकी क्या एग्जांपल्स हैं। देयर वाज अ पार्टी एट माय होम, मेरे घर में एक पार्टी, एक तकरीब, एक दावत थी। देयर वाज अ पार्टी एट माय होम। देयर वाज अ पेपर इन योर फाइल, तुम्हारी फाइल में एक पेपर था। अब आप दोबारा से वही बात कहूंगी कि देखें, मैंने ये पूरा सेंटेंस बोला कि तुम्हारी फाइल में एक पेपर था, इसके अंदर देयर वाज की कहीं पर भी एक तरह से मीनिंग नहीं आई, ट्रांसलेशन नहीं आई, खासतौर से देयर, ठीक है।
तो कोई भी ट्रांसलेशन नहीं होती, लेकिन एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए इसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। देयर वर का इस्तेमाल होगा, देयर वर सम पिक्चर्स इन माई फोल्डर, मेरे फोल्डर में कुछ तस्वीरें थी। अब क्योंकि तस्वीरें थी, पिक्चर्स थी, प्लूरल थी, इसलिए देयर वर। नाउ देयर वर मेनी फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे, तो ये एग्जिस्ट करते थे पास्ट में, इसलिए हमने इसको देयर वर के साथ इस्तेमाल किया। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू एवरीबॉडी कि देयर इज लाइक अ मिसकंसेप्शन और देयर इज अ कंफ्यूजन फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स के वो लोग हमेशा देयर और देयर इसमें हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। तो अब आप लोगों ने जब ये टॉपिक पढ़ लिया है, तो दिस कंफ्यूजन शुड बी क्लियर 50% एटलीस्ट, कि आपको एग्जिस्टेंस शो करने के लिए THEIR वाला नहीं बल्कि THRE इस्तेमाल करना होता है, और THEIR इस्तेमाल करते हैं हम लोगों के लिए। देयर हाउस, उनका घर, देयर पार्टी, उनकी तकरीब, देयर प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल, ठीक है। तो ये लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, ये एग्जिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन यानी तलफ़्फ़ुज़ दोनों का एक ही है, बोथ द वर्ड्स आर प्रोनाउंस्ड इन द सेम वे, देयर, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद क्या है, इसी को अगर हम फ्यूचर के अंदर कन्वर्ट कर ले, एग्जिस्टेंस को ही बताएं लेकिन फ्यूचर में। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द लास्ट थिंग। देयर इज, देयर आर का ये लास्ट चीज़ है, एक सेगमेंट। There will be, if you are talking about the existence of something in future, so you use there will be. पिकनिक पे बहुत मजा आएगा, there will be lots of fun at the picnic. There will be a solution of your problem, तुम्हारे मसले का हल होगा, यानी वो एग्जिस्ट करेगा लेकिन फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा। तो ओवरऑल हमने देयर इज, देयर आर पढ़ा, देयर वॉज, देयर वर पढ़ा, देयर विल बी पढ़ा, लेकिन हमने इन सब के अंदर एग्जिस्टेंस की बात की है, जो कि ये शो कर रहा है, ठीक है, ये शो कर रहा है। अब वो चाहे प्रेजेंट में करे, पास्ट में करे या फ्यूचर में करे, लेकिन ये एग्जिस्टेंस को शो कर रहा है। सो आई होप द टॉपिक विल बी इंशाल्लाह क्लियर इन योर माइंड्स। तो इससे रेलिवेंट इंशाल्लाह कॉन्वर्सेशन टॉपिक आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, या फिर आपको असाइनमेंट के तौर पे मैं व्हाट्सएप के ब्रॉडकास्ट में दूंगी। एक चीज़ की आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीडियो के एंड में कि प्लीज़ 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 अवॉइड कॉलिंग मी। किसी भी सूरत में कॉल्स अलाउड नहीं है। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई आपके साथ कितना ही जेन्युइन प्रॉब्लम क्यों ना हो, आपको वीडियो नहीं मिली है, आपको वीडियो मिल गई, डिलीट हो गई है, कुछ ऐसा मसला हो गया, आप कॉल नहीं कर सकते। किसी भी तरह से कॉल अलाउड नहीं है, और रात के 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बजे तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ जो भी कहना है आपने वॉइस मैसेज पे कीजिए, वो भी बहुत जेन्युइन, अगर आपका कोई क्वेश्चन तो ही कीजिएगा। अदरवाइज कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। जितना मैंने अभी आपको पढ़ा दिया है और जो आपको आज का असाइनमेंट मिला है, वो आपने ज़रूर सॉल्व करके अपना वॉइस मैसेज में डायरेक्ट सिर्फ वो असाइनमेंट भेजना है। इसके अलावा आप कोई मैसेज नहीं भेजेंगे, कभी भी कोई भी मैसेज ना भेजें मुझे। जो मैं आपको असाइनमेंट दूँ सिर्फ वो भेजें, क्योंकि उससे भी प्लीज़ मेरा इनबॉक्स भर रहा होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग कोई भी किसी किस्म का मैसेज मत कीजिएगा, और कॉल्स तो बिल्कुल मत कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग लर्निंग, और इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव अ लॉट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम। और लास्ट में दोबारा कहना चाहूँगी, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification of every video and lesson of yours, so that you can improve more and more, and share the video so that everybody have the same kind of opportunity to learn English and improve themselves. Thank you so much everyone. इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।